Hello everyone. So we were doing the chapter 9. Today we will start the topic emergence of towns and cities. The towns and cities of second urbanization mostly grew due to patronage by the kings and traders. These urban centers come under one or more of the following categories. कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था सारी सिटीज़ को, तो वो बताई गई हैं। जैसे चीफ पोर्ट्स, पोर्ट्स कौन कौन से थे? बारी गाजा इन गुजरात, अरिकामेडू पौडुचेरी के पास, और मुजेरिस इन केरला, कावेरी पट्टिनम, अलंगाकुलम एंड कोरकई इन तमिलनाडु। अब कैपिटल सिटीज़ के बारे में बताया गया है। कैपिटल सिटीज़ कौन सी थी? मदुराई तमिलनाडु में, द कैपिटल ऑफ पांड्या किंग्स। कैपिटल्स ऑफ जनापदास सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी एंड श्रावस्ती. Significantly, many of the capital cities were also commercially important. For example, Madurai has always been famous for its cotton textile. तो जैसे मदुराई काफ़ी फेमस थी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए. देन है साइट्स रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. अब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा पाए जाते थे. क्या थे वो? कोडुमनल इन तमिलनाडु, बेरियल, सफायर एंड क्वार्ट्स डिपॉजिट्स were found in the vicinity of the site, which developed as a thriving industrial center where jewels, iron and steel implements and textile were produced. Here archaeologists have unearthed terracotta, spindle walls and a piece of ancient cloth. This cloth fragment is believed to be the oldest such find in South India. Then is craft center. Craft center कहाँ थे? वाराणसी. टेक्सटाइल, pottery, ivory objects, jewelry including stone and glass beads were manufactured at वाराणसी. नेक्स्ट है टाउन्स विच ले ऑन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. अब ऐसे टाउन्स के बारे में बात होगी जहाँ जिनके जो कहाँ पे थे, जिनके रूट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी लंबे लंबे रूट्स हैं, उसके आसपास जो भी टाउन्स बसे हुए हैं उनके बारे में बात आई है. तो द इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ दिस कैटेगरी आर मथुरा इन उत्तर प्रदेश एंड नगर जुनाकोंदा, अमरावती एंड कोंदापुर इन आंध्रा. It may be noted that many of the ancient towns and cities in Andhra developed society on account of their location on the routes linking to the ports of southeastern India and western Deccan Maharashtra region. Several of these Andhra sites located on the bank of major river also served as inland ports. Yet another trade route site is Sannati, Karnataka, which also have revealed edicts of Emperor Ashoka, 3rd century BCE. तो ये उन सब सिटीज़ के टाउन्स के नाम हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन्स हुआ करते थे और इनके जो रास्ते हैं वो लिंक होते थे काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट्स के पास. नेक्स्ट है मैनी अदर टाउन्स हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. सच टाउन इंक्लूड श्रीरंगम तमिलनाडु, अयोध्या उत्तर प्रदेश, बोध गया बिहार एंड मथुरा उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ केस स्टडी पुहार और कावेरी पट्टिनम. Now let us read about Puhar or Kaveri Pattinam, a southern city. Our knowledge in this city is based on the Sangam text. Kaveri Pattinam is a small fisherman's village on the eastern coast of Tamil Nadu. It is located at the point where the Kaveri river flows into the Bay of Bengal. A Sangam poem says that big ships entered the port of Puhar without slacking sail and poured out on the beach precious merchandise brought from overseas. In the extensive market of Puhar, there were many tale mansions surrounded by platform reached by high ladders. These mansions had many rooms with wide hallways and corridors. The general plan of the city of Puhar is described in considerable detail in the Tamil epic Silappadikaram. The town had two distinct districts, Maruvarpakkam near the sea and Pattinapakkam to its west. These two districts were separated by a stretch of garden or orchards where daily markets were held under the shades of trees. The marketplace had both day and night markets. Maruvarpakkam, being close to the shore and hence to the shipyard, was naturally preferred by many overseas travelers, merchants, and yavanas, foreigners, whose pleasant feature arrested the eyes of the spectators living close to each other. Maruvarpakkam was inhabited by the fisher folk. The town had several warehouses, weaver, silk merchant, vendors, fish and meat sellers, potters, grain merchants, jewelers and diamond makers lived in Maruvarpakkam.
The king and nobles, rich traders and farmers, physicians, astrologers, member of the king's army, court, dancer occupied Patinapakkam. Several gardens added to the beauty of the city. तो अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी के बारे में, और ये केस स्टडी किस शहर की है? पुहार की, जिसे कि कावेरी पट्टिनम भी बोला जाता था। इस सिटी की सारी जो भी जानकारी मिलती है वो संगम टेक्स्ट के थ्रू मिलती है। कावेरी पट्टिनम एक ऐसा गांव था जहाँ पे छोटे छोटे मछुआरे रहते थे, फिशरमैन रहते थे, और ये शहर बसा हुआ था जहाँ से कावेरी नदी फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती थी। उसके बाद पुहार की मार्केट्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ जो मार्केट्स थी वो काफ़ी बड़ी थी। उनके आसपास बहुत से बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स थे जिनके ऊपर की बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई थी चढ़ने के लिए। इन मैंशंस में काफ़ी सारे रूम हुआ करते थे, हॉल हुआ करते थे और कॉरिडोर होते थे। इस सिटी का जितना भी सारा प्लान है, जो भी इसका नक्शा मान लो या मैप मान लो, उसकी सबकी डिटेल किस में दी गई है? एक तमिल की एपिक में दी गई है, सिलपट्टिकरम में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि इस सिटी के दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे। एक था मरुवरपक्कम नियर द सी और पत्नीपक्कम टू इट्स वेस्ट। वेस्ट साइड पे पट्टिनपक्कम था और सी वाली साइड पे कौन सा था? मरुवरपक्कम। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया था? एक गार्डन से ऑर्चार्ड्स के फूल लगा के, जहाँ पे रोज की मार्केट होती थी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की, और पेड़ों के नीचे ही वो मार्केट हुआ करती थी। और ये मार्केट दिन में भी होती थी और रात में भी होती थी। तो सबसे पहले बताया गया मरुवरपक्कम के बारे में। ये मरुवरपक्कम क्या था? बहुत ही पास था, किसके? सी के पास था। और काफ़ी सारे जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे आना पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत ही दिखने में भी सुंदर था और सब सारे देख के इसे हैरान हो जाते थे। फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते थे। मरुवरपक्कम का जो मेन ट्रेड था वो था फिशिंग। और इस टाउन में बहुत से वेयर हाउसेस थे। वेयर हाउसेस मतलब गोदाम थे। और यहाँ पर वीवर, सिल्क मर्चेंट, फिश वेंडर्स, मीट सेलर्स, ज्वेलर्स, डायमंड मेकर्स, ये सब कहाँ रहते थे? मरुवरपक्कम में। और जितने भी किंग थे, राजा थे, यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी थे और अमीर लोग थे, फार्मर्स थे, फिजिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, या फिर किंग की जो आर्मी थी, वो सब कहाँ रहते थे? पत्नीपक्कम में। और साथ ही साथ इस सिटी में बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन भी थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू वेरियस सोर्सेज. Now let us make use of different type of sources material to learn about the certain ancient villages and towns and the people who lived there. The Periplus of the Erythraean Sea, Periplus Maris Erythraei, 80-89 CE, is a Greek periplus sailing around describing navigation and trading opportunities from Roman Egyptian ports along the coast of the Red Sea and other along East Africa and India. Although the author is unknown, it is clearly a first-hand description by someone familiar with the area and is nearly unique in providing accurate insight into what the ancient worlds knew about the land around the Indian Ocean. It provides interesting information about ports such as Barigaza or Bharucha in Gujarat. It also describes the various goods or commodities imported from Rome to India and exported from India to Rome. The Periplus was frequently used as guidebook by sailor merchant sailing in the Indian Ocean. तो इसमें बताया है कि जो पेरिप्लस था, पेरिप्लस एक ऐसा मनुस्क्रिप्ट थी जिसके बीच में सारी इंडियन ओशियंस और उनके आसपास जो चीज़ें थी, कोस्ट एरिया के बारे में सब कुछ, सारी लिस्ट थी, सारा कुछ बताया गया था, कौन कौन सा कोस्टल एरिया है और कौन कौन सी इंडियन ओशन के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं। तो लोग उन्हें, जितने भी सेलर थे जो भी शिप चला के आते थे, तो उन्हें एज अ मैप यूज़ करते थे और उसके थ्रू हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे कि ये इंडिया की सबसे पुरानी मनुस्क्रिप्ट थी जो इंडियन ओशन के बारे में जिसमें लिखा गया था, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी और जो भी रास्ता, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन वो अभी तक पता नहीं चला कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट देता था हमें। और उसके बाद इसमें काफ़ी कुछ ऐसा भी बताया गया है कि इसमें काफ़ी गुड्स और कमोडिटीज़ हैं जो कि इंडिया में रोम से इंपोर्ट करी जाती थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इंडिया रोम को एक्सपोर्ट करता था। तो पेरिप्लस एक गाइड बुक की तरह भी काम करता था जब भी सेलर्स जो हैं, मर्चेंट्स जो हैं, अपना माल लेकर इंडियन ओशंस में आया करते थे। अब हम पढ़ेंगे अ केस स्टडी ऑफ मथुरा, मथुरा के बारे में।
It is situated on the banks of the river Yamuna in the state Uttar Pradesh. We read earlier that Mathura lay on an important trade route. Many inscriptions, statues, and sculptures have been discovered from Mathura. These throw light on the life of the people who lived here around 25 years ago. Around the time of Christ, the city was the secondary capital of the king of the Kushana dynasty, Peshawar being their main capital. Mathura's important lay in its location at the crossroad of the two major ancient trade routes, one linking Central Asia and Taxila, Pakistan, in the northwest to the port of Tamralipati or Tamluk in eastern India, and the other connecting North India with trade center in western and southern India. Mathura was also a religious center. It was the birthplace of Lord Krishna. There were many Buddhist monasteries and Jain temples in the city. From early times, Mathura has been a center of art. Many sculptures were produced here. These sculptures were mostly made of red sandstone available locally. The unique art style of Mathura came to be called the Mathura School of Art. Archaeologists have discovered several inscriptions in and around Mathura. Many of these inscriptions are on the stone slabs and statues. They record the gift offered to the monasteries and temples by king, queens, merchants, and craftsmen. From these inscriptions, we learn that there were colonies of goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garlands markets, and perfume makers in Mathura. The city was very big and was enclosed by strong fortification. Farmers from the neighboring villages supplied food to the people of this city. तो इस सारे पैराग्राफ में मथुरा के बारे में बताया गया है. मथुरा कहाँ पे लोकेटेड है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और यमुना रिवर के पास ये शहर है. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था. व्यापारियों का एक रास्ता यहाँ से होकर जाता था, इस शहर में से होकर जाता था. ये शहर को डिस्कवर कब किया गया था? 25,000 साल पहले. और इसमें, इस शहर में मेनली बताया गया है कि ये शहर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे दो रूट लिंक करते थे, एक सेंट्रल एशिया से और एक नॉर्थ वेस्ट थे. और ये शहर का जो कैपिटल थी वो कौन सी हुआ करती थी? किंग्स के टाइम में, कुशाना डायनेस्टी के टाइम में इसकी जो कैपिटल है वो पेशावर हुआ करती थी. इसके साथ साथ मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी बन गया था क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था. ये कृष्ण जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है. और यहाँ पे काफ़ी सारे जैन टेम्पल्स भी हैं और बुद्धिस्ट के भी मोनेस्ट्रीज काफ़ी सारी हैं इस सिटी में. और पुराने टाइम में मथुरा को आर्ट का सेंटर बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, स्टैचूज बनाए जाते थे. किसके? सैंडस्टोन की, जो कि लोकली कहीं भी मिल जाते थे मथुरा में. तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था. इसी कारण से इसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता था. और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करी हैं इस शहर के बारे में, कि जैसे इंस्क्रिप्शन थी वो स्टोन, पत्थरों की या सिर्फ स्टैचू की मटेरियल में ही पाई गई हैं. तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में चढ़ाए जाते थे किंग्स, क्वींस और मर्चेंट्स के द्वारा. और यहाँ पर ये इस इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज थी जिसमें ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स और परफ्यूम मेकर्स भी हुआ करते थे. और इस सिटी के आसपास बहुत सारे फोर्ट्स भी हैं और इनके नेबरिंग विलेज जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वहाँ से इस शहर का सारा खाना या कि अनाज सप्लाई हुआ करता था. सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू स्टूडेंट्स.